Okay, the presentation is visible, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So yesterday we learned about various neurotransmitter and their role. Good evening, ma'am. Good evening. And today we'll move forward with the very basics of major divisions of nervous system. Okay, so as you all know, basically about the nervous system, which is composed of all the neurons, right? So the major nervous system is divided into two parts. One is peripheral nervous system, and other part is central nervous system. Central nervous system is comprising of your brain and spinal cord, whereas peripheral nervous system includes your somatic system. Somatic is your whole body system. Somatic system and the autonomic system. Now, this autonomic system, it also has two parts. One is the sympathetic autonomic nervous system, other is parasympathetic autonomic nervous system. Autonomic, you all understand? The one which is not in our control, involuntary. Yes, ma'am. Okay, so involuntary के दो parts हम पढ़ते हैं, sympathetic and parasympathetic, whereas somatic is voluntary. Yes, ma'am. And both the peripheral nervous system and the central nervous system are interconnected because our brain gives signal through spinal cord to our body, and then our body react and respond accordingly. ठीक है? Similarly, जब हम body के through कुछ receive करते हैं, then our signal is sent to brain and then brain respond accordingly. So the both central nervous system and the peripheral nervous system are interconnected. Okay, you know this, I guess. So whenever a message is sent from hair to hair, from brain through spinal cord to your actual peripheral nervous system, through spinal and cranial nerves, it may get into your motor nerve, जिसको हम efferent भी बोलते हैं. Okay, motor are neurons. Motor nerves are efferent in nature. Motor में it could be, then it could further affect somatic, the voluntary muscles, skeletal muscles जिसको हम बोल रहे हैं, जैसे कि the movement of my hand is somatic, voluntary, right? And the autonomic also, autonomic is involuntary, like our cardiac muscles, smooth muscles, gland, वो सब involuntary है, ठीक है? But signal कहाँ से आ रहा है? Central nervous system से to this body, right? And then the autonomic nervous system also has sympathetic and parasympathetic branch. And then we also receive through this body through sensory neurons. हमने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में. Sensory neurons, which are also called as afferent, ठीक है, जिसके थ्रू हम रिसीव करते हैं. तो अपने जो सेंस ऑर्गन्स है उनके थ्रू हम रिसीव करते हैं थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स, एंड देन थ्रू द स्पाइनल सिस्टम द मैसेज इज अगेन सेंड टू our brain, and then the whole relay action replays. Okay, this is the reflex action we were talking about yesterday also. So this is the stimulus. Suppose we have like touched this pin, okay, or yesterday we discussed about the hot pan. Okay, so what will happen? There is sensation here. Sensory neuron will receive this sensation. यहाँ पे एक रिसेप्टर होगा जो इस स्टिमुलस को रिसीव करेगा, ठीक है, जिससे आपका सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट होगा, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, राइट? एंड देन दैट इंफॉर्मेशन इज सेंड टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां पे इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टिमुलस इट वाज इट हार्मफुल, वाज इट पेनफुल, किस तरीके का स्टिमुलस आपको मिला है, तो वो सारी प्रोसेसिंग यहाँ हो रही है. एंड द मोमेंट इट डिकोड्स इट एंड से दिस इज नॉट गुड फॉर यू, दिस इज हार्मफुल, स्टे अवे, जब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोसेस होती है तब
spine के through interneuron, which we discussed yesterday. Interneuron. This is the interneuron. You can see here. This is the sensory neuron. You can see, right? आप structure भी देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. This is the structure also. ये sensory neuron है. This is interneuron, and this is the motor neuron, right? And then information from through this interneuron is sent to this motor neuron, और फिर हम अपना हाथ पीछे हटा लेंगे from something that is harmful to us. लेकिन वो मैसेज यहाँ से डिकोड होके आया है, तो मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट होएगा एंड देन विल रिस्पॉन्ड. क्लियर है ये रिफ्लेक्स एक्शन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Then the two systems, somatic nervous system and the autonomic nervous system. Somatic nervous system has spinal nerves and cranial nerves. ठीक है? Afferent from sense organs and efferent to muscles. जो सेंस ऑर्गन से आ रही हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स है हमारी, उनको हम एफरेंट बोलते हैं, और जो मसल्स मोटर न्यूरॉन की तरफ जा रही हैं, ठीक है, मसल्स की तरफ जा रही है, उनको हम इफरेंट बोलते हैं. वाई एफरेंट एंड इफरेंट? यहाँ पे क्योंकि ये इफेक्ट का काम करते हैं और यहाँ पे ये अफेक्ट का काम करते हैं. यू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी, अफेक्ट एंड इफेक्ट? डिफरेंस पता है अफेक्ट और इफेक्ट का? जब हम सब साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, राइट? एबीसी होता है. मैम एबीसी में अफेक्ट, बिहेवियर और कॉग्निशन. मैम अफेक्ट ऑन इमोशनल लेवल ना, कि जब हमारे इमोशनली कोई चीज फील होती है. हाँ, तो व्हाटएवर वी फील दैट इज अफेक्ट ना. यस मैम. ठीक है, तो वहां से वो अफेक्टर वो बना है टर्म हमारा. ठीक है, वो एफरेंट है जो ले रहे हैं, एंड देन इफेक्ट मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्ट जा रहा है ना उसका. हाँ जी मैम. फीलिंग का, तो वो इफरेंट है. ठीक है, दिस वे यू कैन रिमेम्बर द टर्म्स, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हो. ओके. Oh yes ma'am. Then cranial nerves, again afferent from sense organs and efferent to muscles. ठीक है, ये somatic nervous system का composition है. The autonomic nervous system has sympathetic branch, जहाँ पे spinal nerves आती हैं from thoracic and lumbar regions and sympathetic ganglia. ठीक है, ganglia again we discussed yesterday, where lot of neurons are there. It is a system, a bunch of neurons. Yes, ma'am. Okay. तो सिंपैथेटिक गैंग्लिया. अच्छा, ये जो लोकेशंस अभी हम पढ़ रहे हैं, आई गेस मुझे जहां तक याद है ये एग्जाम्स में आ चुकी है. एज फार एज आई रिमेम्बर, एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है इस बारे में. पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच, क्रेनियल नर्व्स, 3rd, 7th, 9th and 10th, स्पाइनल नर्व फ्रॉम सेक्रल रीजन. सो दिस हैज बीन आस्क्ड कि स्पाइनल नर्व्स कौन से रीजन का है इसमें, और सिंपैथेटिक में स्पाइनल नर्व्स कौन से रीजन से है, thoracic and lumbar regions. Yes, ma'am. This particular question has been asked in your exam. Parasympathetic. Afferent और efferent वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है. अच्छा, okay, great. So, which is adjacent to target organs. ठीक है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन के थ्रू एक्ट होना है. तो एक्शन हम सिर्फ हाथ पैरों में थोड़ी कर रहे हैं, इनसाइड द बॉडी भी तो हो रहा है ना. किडनी जब फंक्शन कर रही है, हार्ट जब फंक्शन कर रहा है, उनको भी तो ब्रेन से सिग्नल जा रहा है ना. When we eat food, again some signal is generated, उसको डाइजेस्ट करने का भी सिग्नल जाएगा. Yes, sir. Right? So the peripheral nervous system is made up of all nerves and neurons that are not contained in your brain and spinal cord. It carry nerve impulses from sensory receptors inward to CNS. I guess this is clear. सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज गया कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. इट कैरी नर्व इम्पल्सेस आउटवर्ड फ्रॉम सीएनएस. दूसरा पाथवे क्या है? एक तो वो यहाँ से सिग्नल लेके सीएनएस पे गया, दूसरा आउटवर्ड सीएनएस से वापस मूवमेंट ऑफ मसल्स पे आया. यस सर. ठीक है,
Sorted now. It allows CNS to control muscle and glands of the body. So it allows कि हमारा CNS इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे मसल्स को और हमारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर सके. ठीक है, तो मसल्स आर समथिंग जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, बट ग्लैंड्स आर समथिंग जो इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अलाउ करता है कि सीएनएस के साथ कोऑर्डिनेट करता है बेसिकली, सो दैट द मूवमेंट्स कैन हैपन. ओके, so this is the whole system you can see here, the autonomic nervous system. ये सिंपैथेटिक ब्रांच है. आप देख सकते हैं स्पाइन का कौन सा रीजन है, इट्स थोरैसिक. इट इज रेफर्ड एज थोरैसिक एंड लंबर रीजन ऑफ स्पाइन. एंड पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच की अगर हम बात करें तो इट हैज क्रेनियल एंड सेक्रल रीजन ऑफ. ठीक है, ये थोड़ा सा ये पार्ट यहाँ पे है, थोड़ा सा ये पार्ट यहाँ पे है, बस इतने ही रीजन को इसने कवर किया. देन यू हैव योर गैंग्लियन, यानी कि बहुत सारे न्यूरॉन्स, ये जो बंच है ना, ये पूरा गैंग्लियन है. ओके, you can see here in the diagram, one is like in both the branches, sympathetic and parasympathetic, there are these blue colored neurons. जो आप देख रहे हो ये blue color की जो neurons है, these are pre-ganglionic and post-ganglionic. ठीक है, तो ये जो पहले डायरेक्ट सेक्रल से डायरेक्ट यहाँ से निकल रही है ना, जो क्रेनियल से और सेक्रल से जो डायरेक्ट निकल रही है, क्रेनियल स्पाइन वाले को बोलते हैं, क्रेनियल ब्रेन वाले को बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट न्यूरॉन्स निकल रहे हैं इनको बोला गया है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. और ये जो बाद में है यहाँ पे छोटे छोटे, इनको बोला गया है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. ठीक है, सिमिलरली हेयर, यहाँ पर ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, फ्रॉम हेयर डायरेक्ट फ्रॉम दिस रीजन. एंड इसके आगे, उसके आगे जो ये न्यूरॉन्स जा रहे हैं, दीज आर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. यू कैन सी है ये वाले जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं लाइट कलर में, दीज आर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स. मैम प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस हुआ? प्री और पोस्ट में मैसेजेस का फर्क है. देखो प्री एंड पोस्ट, किसके प्री और पोस्ट की बात हो रही है? गैंग्लियोनिक की. गैंग्लियन क्या होता है? द कंपोजिशन, द स्ट्रक्चर, बहुत सारे सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स एक तरीके से, है ना. सो इट इज इन दिस प्री एंड पोस्ट इज इन रिगार्ड विद द गैंग्लियन वर्ड, विद द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है, तो प्री इज बिफोर गैंग्लियन एंड पोस्ट इज आफ्टर. सिंपल सी बात है. क्या बोलते हैं, काम और लोकेशन का जो गैंग्लियन का ये जो रीजन है, जो पॉइंट्स हैं जहां पे बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं, उसको प्री बोला है, यानी कि जो सबसे पहले इनिशिएट हो रही है. ठीक है, एंड देन द पोस्ट इज द आफ्टर गैंग, आफ्टर दैट स्ट्रक्चर और सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स. तो सिर्फ वही मतलब जो सोर्स वाली साइट है वो प्री हो गई और उसके आगे जो कैरी फॉरवर्ड वाली है वो पोस्ट हो गई. राइट. अच्छा, ओके मैम. ठीक है, नाउ यू कैन सी, हम पहले सिंपैथेटिक ब्रांच देखते हैं. ठीक है, द सिंपैथेटिक ब्रांच इज वेयर एट दैट पॉइंट, जब हमारा फ्लाइट एंड फाइट मोड ओपन मतलब स्टार्ट होता है, व्हेन वी पैनिक और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सपोज यू हैव सीन अ स्नेक, तो एकदम से फ्लाइट और फाइट मोड ऑन हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी. ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको उस वक्त भूख लगेगी क्या? नहीं लगेगी. ठीक है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी काम करना बंद कर जाएगा. आपका सलाइवेशन इनहिबिट हो जाएगा. सो डाइजेशन से रिलेटेड जितने प्रोसेस है सब स्लो डाउन हो जाएंगे, बट ब्रीदिंग से रिलेटेड बढ़ जाएंगे. हार्ट बीट बहुत स्पीड अप हो जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी, स्वेटिंग होगी. ठीक है, एनर्जी चाहिए ना फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स के लिए, इसलिए ग्लूकोज रिलीज होगा बॉडी में. ठीक है, अब सबसे मेन कौन से है? सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन बाय एड्रिनल मेड्यूला. जो किडनी के ऊपर ये जो लोकेशन होती है ना, यहाँ से आपके एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, इसको हम एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन भी बोलते हैं. कल हमने इसके बारे में पढ़ा था ना न्यूरोट्रांसमीटर्स में. Yes, ma'am. तो दे आर रिलीज्ड इन दिस मोड. ठीक है, इन दिस फ्लाइट एंड फाइट मोड दे आर रिलीज्ड.
रिलीज होते हैं तो ये फर्दर बहुत हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में स्टिमुलेशन फर्दर कॉज करते हैं, इनके अपने रिस्पॉन्स होते हैं. इवन स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल रिलीज करता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन, वो भी इसी सिस्टम का पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. व्हेन वी आर इन दिस सिंपैथेटिक ब्रांच, फ्लाइट एंड फाइट मोड. आपने देखा है ना, जब स्ट्रेस होता है तो वैसे तो आजकल स्ट्रेस ईटिंग भी बहुत कॉमन है, बट जनरली स्ट्रेस में क्या होता है, पेट में अल्सर्स हो जाते हैं. हमने स्ट्रेस में भी पढ़ा होगा आई गेस, जब हम ह्यूमन स्ट्रेस और हेल्थ की बात करते हैं. तो पीपल गेट अल्सर्स इन द स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम गेट हैम्पर्ड, होता है ना इन जनरल ऑल्सो. ठीक है, तो वो दैट इज पार्ट ऑफ दिस होल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, और फिर जब हम एफिनेफ्रिन जब रिलीज हो ही जाता है, एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन, तो उसके फर्दर इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर. इट फर्दर एक्ट्स. ठीक है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे भी, जैसे ये सिस्टम आ रहा था, ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स थे. इन्होंने पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव सिस्टम को इनहिबिट किया, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक यूनिट है न्यूरॉन्स का, वहां जाके टारगेट किया. और फिर वहां से जो न्यूरॉन्स निकल रहे थे वो सारे इफेक्टेड हो गए इससे, तो उन्होंने डाइजेशन से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स इफेक्ट करे. आप देख सकते हैं, ग्लूकोज स्टिमुलेशन रिलीज हुआ, लिवर इफेक्ट हुआ, पेनक्रियाज इफेक्ट हुए, स्टमक इफेक्ट हुआ, इंटेस्टाइन इफेक्ट हुआ. तो कैन यू इमेजिन कितने सारे न्यूरॉन्स इफेक्टेड होंगे वहां पे. आर यू गेटिंग दिस थिंग? यस मैम. यस मैम. है ना, तो आपके सारे ऑर्गन्स आप देख सकते हैं इफेक्ट हो रहा है. डायलेट्स प्यूपिल, इन इवन इनहिबिट टीयर्स. ओके, जब आप अगेन मैंने एग्जांपल दिया था स्नेक का, तो जब भी कोई ऐसा खतरा महसूस होता है ना, तो जो प्यूपिल होते हैं वो डायलेट करते हैं. बड़ी आंखें बड़ी बड़ी करना नहीं कहते. यस मैम. यस मैम. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच, एट दिस पॉइंट यहाँ पर pupil get constructed, it may produce tears at this point. Stimulate salivation, यानी कि digestive mode open हो रहा है, तो ये आपका rest and digest mode है. This is rest and digest mode. Okay, this was flight and fight. Flight and fight mode. ठीक. अब रेस्ट एंड डाइजेस्ट में क्या होगा, इस सिस्टम में आपका सलाइवेशन स्टिमुलेट हो रहा है. ठीक है, यू आर ब्रीदिंग नॉर्मली, आपकी हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाती है, आपका लिवर है, पेनक्रियाज है, स्टमक, ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन दे वर्क प्रॉपरली. ठीक है, तो इट स्टिमुलेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम. जब हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में है तो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन ज्यादा अच्छे से काम करते हैं. ठीक है, then contracts the bladder, stimulate sexual arousal. So all these are rest and digest activities जो ये activate कर रहा है, the parasympathetic branch. ठीक है, डिफरेंस क्लियर है इन दोनों का? यस मैम. मैम फिर यहाँ पर जो ग्लूकोज का जो रिलीज हो रहा था इसमें फाइट एंड फ्लाइट में, वो फिर इनहिबिट हो जाएगा? हाँ, अभी नहीं, इस वाले में नहीं होगा ना, मतलब डाइजेशन चलेगा इस वक्त आपका प्रॉपर. ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड विल गो ऑन, बट उसमें क्या हो रहा है, स्टिमुलेट हुआ, मतलब और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज प्रोडक्शन स्टिमुलेट कर रहे हैं. क्यों? ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले उस वक्त. यस मैम. है ना? तो और ये उससे पहले का प्रोसीजर है. व्हेन यू हैव अभी खाना खाया है, बोलते नहीं है थोड़ा खाना खा के थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि खाते ही भागदौड़ शुरू कर दी. तो सो दैट यू कैन, मतलब यू अलाउ योर डाइजेस्टिव सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली. खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करने को बोलते हैं क्या? नो मैम. कभी नहीं बोलते ना. No. ठीक है, इन दैट मैनर. एनी डाउट स्टिल है? नो मैम. ओके, ये मतलब इसमें आपके कहीं अभी तक 3 स्लाइड में 3 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, बिकॉज फ्रॉम दिस ऑल्सो क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. ठीक है,
then again the similar thing in the parasympathetic, as we have just understood. The preganglionic neuron, इसका location हम discuss कर रहे हैं. Soma, that is the cell body, is usually in the brainstem or sacral toward the bottom of spinal cord. ये वही अगेन सेम चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि एग्जाम में पहले पूछ चुके हैं, इसलिए शायद इसका सेपरेट स्लाइड we have created here. So they are talking about this location. ठीक है? Then the postganglionic neuron, soma is usually in a ganglion near the target organ. तो इसका जो बॉडी है, सेल बॉडी है, न्यूरॉन का जो सेल बॉडी बोले तो जहां पे डेंड्राइट्स है, राइट, जो रिसीव करता है, तो वो कहां पर होगा? उसका सेल बॉडी होगा नियर द टारगेट ऑर्गन, पोस्ट गैंग्लियोनिक में. आप वापस देखिए यहाँ पे, तो पोस्ट गैंग्लियन की बात हो रही है, ठीक है. तो वो कह रहे हैं इसकी जो सेल बॉडी होगी ना, वो टारगेट ऑर्गन के पास मिलेगी. तभी आप देख रहे हैं जितने भी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है टारगेट ऑर्गन के पास है. कैन यू सी दिस ना? यस मैम. कनेक्शन है ना. कम्युनिकेशन कैसे होगा? एक ऐसा थोड़ी है कि अगर मुझे आप तक कुछ खबर पहुंचानी है तो मैं ही आके पहुंचाऊंगी, मैं पास कर सकती हूँ ना आगे. यस मैम. Neurotransmitter released from postganglionic synapse is acetylcholine or nitric oxide. So this you can note. पैरासिम्पथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स मोस्टली रिलीज होते हैं, इट इज मेनली एसिटाइलकोलिन या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड. मैम लेकिन ये सिर्फ पोस्ट गैंग्लियोनिक से हो रहे हैं ना, प्री गैंग्लियोनिक साइनेप्स से नहीं हो रहे हैं. प्री में इट इज मेजरली एसिटाइलकोलिन. अच्छा, क्योंकि एसिटाइलकोलिन, इफ यू रिमेम्बर येस्टरडे आल्सो हमने मस्कुलर जंक्शन, मस्कुलर एक्टिविटी से रिलेटेड पढ़े थे. यस मैम. ठीक है, तो इट इज ऑब्वियस अगेन. तो मतलब मैम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, प्री गैंग्लियोनिक से एसिटाइलकोलाइन ही आ रहा है. हाँ, है ना मैम? दोनों तरफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर मसल सिस्टम ना. वो ग्लैंड्स के हो या मतलब ओवरऑल हो, वैसे तो एसिटाइलकोलिन आता है, बट एसिटाइलकोलिन इज मेनली रिलेटेड टू योर द स्केलेटल मसल सिस्टम की हम बात करते हैं जब इसके फंक्शनिंग की बात करते हैं. एसिटाइलकोलिन के जो हमारे मस्कुलर जंक्शंस होते हैं ना, वहां पे एसिटाइलकोलिन का मेजर रोल होता है. ठीक है, लेकिन यस एसिटाइलिक में भी रिलीज हो रहा है, ये बात भी सही है. तो इट बस एक पॉइंट, मतलब इट मे बी चेक कि जो हमारे जो ग्लैंड्स हैं वहां पे या डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मसल्स होंगे, ठीक है, जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के जो मसल सिस्टम्स होंगे, तो इसका मतलब द एसिटाइलकोलिन इज आल्सो प्लेइंग सर्टेन रोल देयर. In both the cases, yes, acetylcholine is being released and it is acting on the muscles. ठीक है? Yes, ma'am. Again, sympathetic में अगर हम बात कर रहे हैं तो preganglionic neuron, soma is usually in the spine, which we have just seen. ये सारा spine region में है. Postganglionic neuron, soma is in the sympathetic ganglion located next to the spinal cord. Sympathetic ganglion अलग से है, ये देख रहे हैं आप? You can see this. There is whole new network of ganglion, जिसको sympathetic ganglion बोला गया है, जहाँ पे बहुत सारे nerves involved है. Can you see the difference कि parasympathetic कितना sorted सा है with some minimal neuron links, और ये sympathetic branch has like number of neural links. Yes ma'am. ठीक है, क्योंकि उसके फंक्शनिंग भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स है. Then neurotransmitter released from postganglionic synapse is norepinephrine, which we have again discussed, और वो target organ पे भेजेगा and fight and fight response activate हो जाएगा. Is it clear to everyone till here? Yes ma'am. Again, this is somatic nervous system. The sensory pathway you all know. We have discussed this example. Sensory neuron which receives
the information from the stimulus. ठीक है, it gets activated. Receptor होता है, receptor sense करता है, it activates your sensory neuron. The information is passed on to your central nervous system. From there, the processing has been done, and then the information through interneuron is being sent to motor neuron, and then it activates your motor cells or muscles, आपके voluntary muscles को, and then you react and respond. ठीक है, so this whole is sensory pathway, and this whole is motor pathway. So starting with the central nervous system now, it is composed of brain and spinal cord, as you all know already. Brain, both of them, brain and spinal cord, are composed of neurons, glial cells, and they control the life sustaining functions of the body as well as thought, emotion and behavior. So whole functioning का जो head, जो center है वो CNS है, ठीक है? It guides movement, registers sensations throughout the body. Now these are the anatomical subdivisions of human brain. You need to know this. Again, this is important from your exam perspective. इसमें से questions भी आते हैं आपके exam में. And these are basically developmental stages of your brain also. You can say so. ठीक है? Human brain का development की अगर बात करें तो उस perspective से भी important है. As you all know, the major divisions of our brain are forebrain, midbrain and hindbrain. लेकिन जब brain develop होता है तो what are the stages it goes through? क्या क्या और चीजें होती हैं? ठीक है? Now, your forebrain has subdivision of telencephalon, diencephalon. Telencephalon forms later cerebral cortex, basal ganglia, and your limbic system. Diencephalon form your thalamus and hypothalamus. Okay, and all of this comprises of your forebrain. Then your midbrain has subdivision of mesencephalon, which later forms tectum and tegmentum. And your hindbrain has subdivision of metencephalon and myelencephalon. Metencephalon later forms cerebellum and pons, and myelencephalon forms medulla oblongata. And they all together comprises of your hindbrain. Okay, as far as ventricle is concerned, the forebrain has your lateral and the third ventricle, and your midbrain has cerebral aqueduct, and the fourth ventricle is associated with the hindbrain. Now the thing is how to memorize all this. देखो these are the developmental stages as I have told. इसके मैं कुछ pictures आपको पहले show कर देती हूँ. This one, आप देख रहे हैं, this is telencephalon, this is diencephalon, this is mesencephalon, then this is metencephalon, and this is myelencephalon. Okay, and then gradually this whole structure, ये developmental stages हैं, ठीक है? Now this whole structure is gradually translating into the different various important parts of brain. You can see this has become now cerebral cortex, basal ganglia, hypothalamus, thalamus, tegmentum, tectum, cerebellum. This you can see here, and this you can see here. Pons and medulla oblongata. Okay, so this is the developmental phase. Now the thing is, you need to remember all of these things in an appropriate order. ठीक है? आप इनका ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो. So the first one, again I am repeating, telencephalon. सब में encephalon है, ठीक है? Encephalography होता है ना, it is all related to your brain thing. Encephalon word is normal, right? Is it fine with everyone? Encephalon पता है ना सबको? Encephalon clear है सबको? ये word acquainted हो सब लोग? Whenever you talk about your brain, हम encephalon word use करते हैं.
नहीं भी हो तो Yes, अभी देख लो, सब में एनसेफ्लॉन ही वर्ड यूज हुआ है. yes ma'am. ठीक है. Yes, Now what you need to remember is exactly I am telling you now. The first one is telencephalon. ठीक है. You just have to memorize this TEL is not difficult to remember. The first one is tel. बताना है भाई हमें telencephalon के बारे में, हम encephalon के बारे में बताना है. तो this is the first thing, tel. ठीक है. Then the second one में भी ये एनसेफेलॉन ही वर्ड वो होता है ना, जो हाँ. EEG हमारा होता है. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, ओके मैम, सेम ही है ना, मतलब दोनों चीजें. हाँ हाँ. ओके. So then tel के बाद number 2. I'm just trying to, I don't know, you may find out some other way to remember it, but जैसे मैंने याद किया था, I'm just telling you, maybe वो register हो जाए mind में. ठीक है. तो the first one was easy to remember. Second is die. So because it is second, so it was again not difficult to remember. DI die is, मतलब we can relate it ना, twice से जब कोई चीज होती है तो उससे रिलेट कर लिया था. डिवीजन इज सेकंड डिवीजन इज डाई. ठीक है. देन ऑल 3 आर M, M and M. राइट. इन योर एग्जाम आल्सो व्हाट इज द हैक? यहाँ पे ME के बाद यहाँ पे S है, इसके बाद T, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और यहाँ पे M के बाद Y है. सो इट्स इन ऑर्डर. तो यू कैन नॉट लाइक गेट कंफ्यूज इन योर एग्जाम अगर ऑर्डर में पूछ लेते हैं तो. इट्स इन ऑर्डर. MES, S के बाद T आता है, MET, और यहाँ पे M के बाद सीधा Y है, which is one of the second last alphabet. So this is in order. That is why mesencephalon, metencephalon, myelencephalon. Die is 2. तो जो सेकेंड नंबर पे die तो आएगा ही, और tel is the first one. तो आगे सब याद करने में ऑर्डर में इसको दिक्कत नहीं आएगी. क्लियर है ये सबको? Yes ma'am. ठीक है. देन अगेन, अब जब ऑर्डर याद हो गया है तो इसमें भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी, बिकॉज द फर्स्ट 2 आर अंडर 4 ब्रेन, एंड देन अभी पार्ट्स ऑफ ब्रेन हम वैसे भी दोबारा डिस्कस करेंगे, तो यू वोंट इवन फाइंड डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग दीज. ओके. सो जब 4 ब्रेन की बात होएगी और पहला हमारा डिस्कस हो ही गया है, तो इट विल फॉर्म सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम. जो नीचे वाला पार्ट है सेकेंड वन, वो थैलमस हाइपोथैलमस फॉर्म करेगा, विच इज ग्रुप टुगेदर. एंड देन मेसन में फिर टेक्टम, टेगमेंटम आ जाएगा. जो हिंड ब्रेन जब शुरू होता है तब हमारा सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि स्पाइन से कनेक्टेड है, वो लास्ट में आएगा. तो इट इज ऑल इन सीक्वेंस. ओके. थोड़ा सा और एक बार रीड करो, कंसेप्चुअलाइज करो, विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर. ओके. नाउ व्हाट आर एक्चुअली वेंट्रिकल्स? हमने अभी पीछे भी बात करी कि कौन सा ब्रेन का पार्ट किस वेंट्रिकल से एसोसिएटेड है. So ventricle, as you can see in this picture also, na? So these are hollow spaces within your brain where cerebrospinal fluid is there. Yesterday we discussed about cerebrospinal fluid. Can you tell me what was that? CSF के बारे में कल भी बात करी थी ना हमने. मैम भूल गई मैं. फंक्शन क्या बताया था मैंने? कौन सा ग्लायल सेल प्रोड्यूस कर रहा था? मैम ये CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बताया था आपने ना. यही तो वेंट्रिकल्स में फिल्ड होता है. यस मैम. मैम क्वेश्चंस क्या पूछा है आपने अभी? मैंने पहला सवाल ये, कौन सा ग्लायल सेल प्रोड्यूस करता है? ओके मैम. This is the first question. And what is the function of CSF? Two questions I have asked, क्योंकि ये कल ही हमने पढ़ा है. मैम मतलब मैंने कल की क्लास मिस कर दी थी, बट इतना समझ आ रहा है कि सेरेब्रो और स्पाइनल है, तो मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो हमारा CSF हो गया. एंड ये मतलब मुझे पहले से थोड़ा पता है कि फ्लूइड का काम होता है प्रोटेक्ट करना सडन शॉक या उससे, कि वो डायरेक्ट मतलब हमारे जो ब्रेन की एनाटॉमी, मतलब ब्रेन के स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट ना हो, वो फ्लूइड उसको बाउंस बैक करेगा.
राइट, परफेक्टली राइट, वेरी गुड. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो कि हमने कल ही पढ़ा था. आई डोंट नो व्हाई यू मिस्ड इट. एपेंडाइमल सेल्स पढ़े थे ना ग्लायल सेल्स में हमने. यस मैम. सबसे पहले टाइप ऑफ ग्लायल सेल जो हमने पढ़ा था आई गेस आई एम राइट ना, एपेंडाइमल वर्ड था ना. तो वो CSF प्रोड्यूस करते हैं. सेकंड, फंक्शनिंग की जो बात हो रही है, दैट अवनी टोल्ड इट करेक्टली. प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, बॉयंसी के लिए यूज होता है, ठीक है, एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के लिए यूज होता है. दीज आर द फंक्शंस ऑफ CSF. इज इट फाइन? अभी समझ में आया? यस मैम. हाइड्रोसेफलस आप लोग रिवीजन करो, भूल जा. आपने गैंग्लियन कौन सा बताया? एपेंडाइमल, जो फर्स्ट ग्लायल सेल हमने पढ़ा था, फर्स्ट काइंड ऑफ ग्लायल सेल. ओके, ठीक है. देन हाइड्रोसेफलस, दिस इज an issue, this is a disorder. ठीक है, it occurs due to blocked flow of CSF, enlargement of ventricle, subsequent brain damage. तो हाइड्रोसेफलस आपने एक पिक्चर भी देखी होगी, एक इमेज. Sabita ma'am is asking excretion in brain. Excretion in brain, मतलब she is basically asking कि excretion in brain का क्या मतलब हुआ? Excretion in brain नहीं, I told you about excretion of waste products. Excretion of waste products. CSF also do the waste product excretion. Waste products तो रिलीज होते रहते हैं ना कॉन्स्टेंटली हमारे सेल्स में, तो उसको हटाना. और कल भी हमने ये पढ़ा था, ग्लायल सेल्स का फंक्शन होता है, जितने भी वेस्ट न्यूरॉन्स हैं या कुछ आलतू फालतू फॉरेन मटेरियल आते हैं, उन सबको वहां से हटा देते हैं, पूरी साफ सफाई करते हैं वो लोग. जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, जो फर्दर दूसरे ग्लायल सेल्स होते हैं, उनका काम ही ये है न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द साफ सफाई रखना. मैम फिर वो जाता कहाँ है वेस्ट प्रोडक्ट? वो अलग अलग मैकेनिज्म है, या तो उसको डिग्रेड कर देंगे वहीं पे. अच्छा, ओके. या डिफ्यूज कर देंगे. अच्छा, ओके मैम. या उसको एक्चुअली खा जाते हैं, फैगोसाइटोस कर लेते हैं. ओके मैम. ठीक है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोसेफलस. वो किससे होता है? जब CSF का फ्लो रुक जाता है और उससे आपका जो वेंट्रिकल्स हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं. ठीक है. एंड जब ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है तो ब्रेन डैमेज कैन हैपन. यू कैन सी, अब नाउ यू कैन सी इट इज एज योर होमवर्क, बिकॉज मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब आपने नहीं बताया CSF कौन सा ग्लायल सेल ने प्रोड्यूस किया, क्योंकि कल ही पढ़ा था. So मुझे लगता है you guys need some homework so that you keep on revising things. अब हाइड्रोसेफलस आप लोग एक बार घर जाके दोबारा देखेंगे and all of you look at the picture of a child suffering from hydrocephalus so that you can remember it always कि हाइड्रोसेफलस क्या होता है. तो पिक्चर जरूर देखना हाइड्रोसेफलस कैसा दिखता है अगर किसी को होता है तो. मैम इसमें इसका आकार बढ़ जाता है ना? हाँ, ब्रेन इतना बड़ा सर ब्रेन बड़ा सा लगता है, उनका पूरा फेस छोटा होता है और ऐसे ब्रेन बड़ा सा अलग सा दिखता है. राइट. तो जब whenever you look something like this अगली बार भी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हाइड्रोसेफलस है और उसका मतलब क्या है. दैट मीन्स कि CSF का फ्लो रुक गया है, वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट हो गया है. ठीक है मैम. मतलब इसका एग्जांपल वो जो मूवी आई थी, मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें दिखाया था ना, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही बनाया था कि ब्रेन बहुत बड़ा सा. हाँ, बट आई एम नॉट वेरी श्योर वो हाइड्रोसेफलस था कि नहीं. नहीं बट मैम उसको कुछ और डिजीज थी. मैम न्यूरो डिजेनरेटिव वाला प्रॉब्लम दिखाई थी. हाँ, आई गेस. हाँ, मतलब प्रॉब्लम कुछ और था उसमें, हाइड्रोसेफलस की वजह से नहीं था वो, शायद से. ओके मैम. मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर. हो सकता है कोई बाय प्रोडक्ट भी होगा. न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज थी तो हो सकता है उसका बाय प्रोडक्ट भी हो वो. ओके मैम. तो वो वाला केस के लिए मैं श्योर नहीं हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मैंने वो मूवी भी नहीं देखी है ढंग से, और वो एग्जैक्टली बीमारी क्या है उसके बारे में मुझे नहीं पता है अभी. मैम हाइड्रोसेफलस की वजह से मतलब इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज और MR वाली प्रॉब्लम्स भी होती है ना? हाँ, देयर आर चांसेस कि क्योंकि क्या है ना, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड.
Yes, इफ वेंट्रिकल्स आर बीइंग एनलार्ज्ड तो ब्रेन के बाकी एरियाज भी तो अफेक्ट होंगे कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन में, क्योंकि वेंट्रिकल्स कहीं आउट ऑफ द ब्रेन तो है नहीं, दे आर इनसाइड द ब्रेन ओनली. yes ma'am. Right? Now coming to the various parts of human brain, the forebrain region, again, as you know, cerebrum, thalamus and hypothalamus. ठीक है? The pituitary gland you can see here, the brainstem region, sorry, the midbrain is this part. The hindbrain has pons, medulla oblongata and the cerebellum. ठीक है? And this whole is the outer covering of your this pura whole region is cerebral cortex. Okay. Now we are कॉर्टेक्स वाइट वाला मैटर होता है या ग्रे वाला होता है? मतलब दो टाइप के होते हैं ना, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. पूरा होता है, मतलब ग्रे और वाइट. आई गेस जहां तक मुझे पता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स कवर्स एवरीथिंग. बाद में वी गो इनटू डेप्थ कि उसमें वाइट वाले का क्या रोल है, ग्रे का क्या रोल है. अच्छा, ओके मैम. हाँ, द होल आउटर कवरिंग इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ओके मैम. So the cerebrum, we are talking about cerebrum, ठीक है? ये the whole part, this whole part, we are talking about cerebrum. Cerebrum is divided into two cerebral hemisphere. We all, I guess we know this, we have left brain and right brain and left brain. ठीक है? We have two parts which looks similar, one on each side. ठीक है? और there is a deep cleft or deep ridge in between, जो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. The two hemispheres are connected by nerve fibers called corpus callosum. तो ये कौन से nerve fibers हैं? ये nerve fibers हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं corpus callosum, जो डिवाइड करता है ब्रेन को दो पार्ट्स में. Now covered by a sheet of neurons, gray matter. अब this is not covering, gray covering नहीं है, ठीक है? जो अभी आप पूछ रहे ना व्हाइट कवरिंग, ग्रे कवरिंग, तो दैट इज नॉट समथिंग, नॉट ग्रे कवरिंग और व्हाइट. उसमें ये मैटर की बात हो रही है जिसको नाम दे दिया गया है ग्रे मैटर. और जहां तक फंक्शंस की बात है, फंक्शंस आर स्टिल नॉट क्लियर, दे आर स्टिल इनटू एक्सप्लोरेशन मोड कि व्हाइट मैटर का फंक्शन. देयर आर रिसर्चेस जो फंक्शंस बताते हैं, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अपने फंक्शंस होते ही होते हैं, ठीक है? तो जनरली क्या किया है, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस दिखते हैं, माने जाते हैं, उसको उन्होंने ग्रे मैटर टैग करा है बिकॉज ऑफ उसका दिखने, जो उसका विजुअल अपीयरेंस होता है उसकी वजह से. एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाइट मैटर आल्सो, और उसके लिए भी दे आर स्टिल रिसर्चिंग की फंक्शनल रेलेवेंस क्या है. कुछ फंक्शंस कभी कभी बताते हैं, बट दे आर मेरली प्रेडिक्शंस, तो अभी तक श्योरिटी से कुछ नहीं आया है. तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द आउटर कवरिंग. तो ब्रेन का आपका जितना भी आउटर कवरिंग है, दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है? सो हेमिस्फेयर का जो कवर्ड है, जो न्यूरॉन कवरिंग है, दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. So that is a sheet of neurons itself. ठीक है? Sheet of neuron itself. A fissure is also called sulci. Deeper sulci mark division of each hemisphere. ठीक है? इस डिविजन का नाम है. Under cortical covering of cerebrum is nerve fibers. अब ये आ गया आपका white matter due to white myelin. तो बोला है कि cortical covering के जो अंदर होता है, कॉर्टिकल कवरिंग के भी जो अंदर एक लेयर कह रहे हैं वो, वहां पे बोला है उसको व्हाइट मैटर बोला है. ठीक है? अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस जो बायोलॉजिकली टेस्ट किए गए हैं लैब्स में, तो वहां पे उसको व्हाइट मैटर बोला गया. बेसिकली है सारे नर्व फाइबर्स. मैम ये जो व्हाइट मैटर ड्यू टू व्हाइट माइलिन लिखा है, ये माइलिन शीथ वाला माइलिन है? हाँ, ओके, वही वाला है.
क्योंकि न्यूरॉन्स ही है ना, आप समझ रहे हो, ये इतने कॉम्प्लेक्स नाम चल रहे हैं, बट दे ऑल आर न्यूरॉन्स, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट न्यूरॉन्स जब से। या तो नर्व फाइबर्स की बात कर, एक्चुअली न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेन का हर पार्ट कॉर्टिकल कवरिंग से कवर्ड है, हर पार्ट। अब वो कह रहे हैं कॉर्टेक्स की जो कवरिंग है सेरिब्रम की, उसके भी अंडर वो कह रहे हैं एक और नर्व फाइबर की शीट लगी है। इट इज जस्ट लाइक यू प्रोटेक्ट थिंग्स विद नंबर ऑफ शीट्स ना, you want to protect this photograph, आपने पहले एक ट्रांसपेरेंट शीट लगाई, उसको फिर एक ब्राउन एनवेलप में डाला, ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो दीज आर जस्ट ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, और लेकिन वो बनी किससे है? वो नर्व फाइबर से ही बनी है, ठीक है। तो एक लेयर लगा दी, एक पहले नर्व फाइबर की लेयर लगाई, फिर एक और नर्व फाइबर की लेयर लगाई उन्होंने, जस्ट टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, दैट्स इट। ओके मैम, ये जो हमारे ब्रेन के डिविजन्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सब सेरिब्रम के डिविजन्स होते हैं या ओवरऑल ब्रेन के होते हैं? सेरिब्रम के नहीं होते। अच्छा ओके, सॉरी, सेरिब्रम फोर ब्रेन, ठीक है मैम। आई जस्ट होप क्लास खत्म होते होते ही सब याद हो जाए आपको कि व्हाट आर द पार्ट्स एग्जैक्टली, ठीक है। ओके मैम। अगेन कमिंग टू द मेजर पार्ट्स, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जनरली associated with our regulation of our body temperature, reproductive functions, eating and sleeping issues, display of. Midbrain is found to be associated with our visual system. This we will learn exactly how. जब हम आई के बारे में पढ़ेंगे, ईयर के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे आपको इसका मतलब समझ आएगा कि हमने मिड ब्रेन में विजुअल सिस्टम को या ऑडिटरी सिस्टम को क्यों रखा है, ठीक है। And again, you just have to be much more aware and open. Everything is connected. Each and every lecture is connected. So visual system, auditory system, eye movement, body control, relay station. Relay between forebrain and hindbrain, basically. Hindbrain helps in coordinating body movements, motor activities, maintaining the posture, sleep pattern, respiration and blood circulation. ये सब हिंड ब्रेन में होता है. Then there is this part in our brain called substantia nigra. ठीक है, ये भी ब्रेन में ही होता है. When it degenerates, it causes Parkinson disease. जब ये degenerate होता है, तब Parkinson disease होती है. Okay. Now coming to the specific parts with their specific function. So we are starting with cerebral cortex, the outer layer which we were talking about. ठीक है, जिस ग्रे मैटर की, जिस आउटर कवरिंग की हम बात कर रहे थे. So that covering is associated with thoughts, voluntary movements, language, reasoning, perception, planning, and imagination. Okay. Then hypothalamus. Hypothalamus regulates the autonomic nervous system through pituitary gland. If you remember the structure. You remember the structure ना, यहाँ पे ये थैलमस है. थैलमस किससे कनेक्टेड है? पिट्यूटरी ग्लैंड से. अगेन वी विल स्टडी दिस इन वेरी मच डिटेल जब हम बायोलॉजिकल पाथवेज पढ़ेंगे, कैसे हार्मोन रेगुलेट होते हैं बॉडी में. तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है. व्हाई? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी and glands autonomic. Yes, So it regulates autonomic nervous system, thirst and hunger. Again, we'll study all these in detail. Role in aggression, homeostasis and mating, and it controls the pituitary gland. Thalamus acts as a relay station for number of information. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो सेंसरी इनपुट से लेता है सारी इंफॉर्मेशन. थैलेमस एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन. ऑल्फैक्शन यू नो ना मैम? ऑल्फैक्टरी से रिलेटेड है ना, ये स्मेल से रिलेटेड है. हाँ हाँ, उसको छोड़ के बाकी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन थैलेमस लेता है.
Yes, ma'am. It regulates our consciousness, sleep and alertness. Then we have our limbic system also. Limbic system को इमोशंस के साथ भी कई बार एसोसिएट किया जाता है, ठीक है. सो लिम्बिक सिस्टम इज लाइक वी हैव लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड आवर बॉडी ना, जहाँ पे मतलब विच इज कनेक्टेड थ्रू आवर ब्रेन, ठीक है. तो वहां पे व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव सर्टेन पार्ट्स लाइक हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एंड सिंगलेट गायरस. यहाँ पे यू भी आता है शायद. हाँ मैम, यू आता है. सो हिप्पोकैम्पस प्लेज रोल इन मेमोरी. आई गेस दिस यू मस्ट नो ऑल. और मेमोरी पढ़ेंगे तब भी हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे. तो जो भी आप कोई भी यूनिट पढ़ोगे ना, आई गेस उस यूनिट के साथ उसका बायो आएगा ही. इन द प्रीवियस यूनिट ऑल्सो जब हम लैंग्वेज पढ़ रहे थे, वी डिड स्टडीड अबाउट दिस थिंग ना. वी डिड स्टडी अबाउट aphasia, Wernicke's and Broca's area. Biological relation पढ़ा था ना हमने. Yes ma'am. Yes ma'am. तो you have to be alert there. हाँ, आपके हर यूनिट में हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं इनफैक्ट. ओके, सो जस्ट बी अलर्ट. बायोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है यूनिट 4 का कि सिर्फ आपके बायोलॉजी में अगर आपने वो पढ़ा होगा या आपके यूनिट 4 के सिलेबस में वो वर्ड लिखा होगा तो ही वो एग्जाम में पूछेंगे. आपके हर यूनिट में जहाँ पे बायोलॉजिकल कनेक्शन मिलेगा, दे विल आस्क इट इन एग्जाम. मैम लिम्बिक सिस्टम को ओल्ड ब्रेन भी कहते हैं ना? हाँ, कहते हैं. लिम्बिक सिस्टम को ओल्ड ब्रेन भी बोलते हैं. इट हैज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ना, मेमोरी भी सारा वहीं पर स्टोर्ड है. प्लस लिम्बिक सिस्टम का हमारे इमोशन से भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है. व्हाई? बिकॉज एमिगडाला इज आल्सो पार्ट ऑफ इट. तो इट हैज रोल इन इमोशन, इट हैज रोल इन मोटिवेशन ऑल्सो, राइट. और ये जो सिंगलेट गायरस आ जाता है तो ये जो यहाँ पे ऑल्फैक्शन छूट गया था ना, वो ये पकड़ लेता है. इट हैज रोल इन ऑल्फैक्शन, ठीक है. इवन आवर मेमोरीज एंड इमोशंस आर आपस में एसोसिएटेड. बहुत ही स्मार्टली मतलब ये डिजाइन हुई है चीजें. और आप सोचो, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला को एक साथ रखा गया है एक ही सिस्टम में, because our memories and emotions are associated. Can you guess it how? Ma'am, क्या? Please repeat. How your memory is associated with your emotions? मैम, क्योंकि जो हमारी मेमोरी रहेगी वो किसी ऐसे इवेंट की रहेगी कि जिसमें हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई हो या बहुत ज्यादा सैडनेस हुई हो. कुछ ऐसे पर्टिकुलर मोमेंट्स होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं क्योंकि उनसे हमें कुछ अलग ही फील हुआ था, इसलिए. तो मे बी इन दैट सेंस इट कुड बी कनेक्टेड. Yes, but otherwise also जितनी भी कंडीशनिंग हो रही है वो भी तो कहाँ जा रही है? Yes मैम, इमोशंस एंड मेमोरी. यस मैम. सारी कंडीशनिंग कहाँ जाके स्टोर हो रही है? न्यूरॉन्स में तो हुआ है ना वो कंडीशनिंग भी. यस मैम. यस मैम. ठीक है, वो भी तो स्टोर ही हो रहा है ना सारा कंडीशनिंग, चाहे वो बचपन से हो रहा हो चाहे कभी से भी हो रहा हो. एंड अगेन इट अफेक्ट्स ईच एंड एवरी इमोशन ऑफ आवर्स. यस हम मैम. कैसे चीजों को परसीव करते हैं और क्या फील करते हैं, वो सारा इफेक्ट होता है उससे. अगर आप स्नेक भी देख रहे हो ना एंड यू आर फीलिंग फियर, तो यू ऑलरेडी हैव सम परसेप्शन अबाउट इट, सम मेमोरी अबाउट द स्नेक. मैं ये नहीं कह रही कि सबको स्नेक ने काटा है इसलिए लग रहा है ऐसा डर. इट इज इन जनरल. बचपन से पता है हमें कि अच्छा स्नेक है, अरे ये तो डेंजरस होता है, इट मे हर्ट अस. यस मैम. इतनी लर्निंग तो है ना हम सबके पास. यस मैम. उससे हमारे इमोशंस इफेक्ट होंगे, हमें कब क्या महसूस करना है. ठीक है. यस मैम. आई गेस अब कभी भूलोगे नहीं कि हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला एक साथ रहते हैं लिम्बिक सिस्टम के अंदर. आई होप सो. मैम नहीं भूलेंगे. ठीक है. देन वी हैव बेसल गैंग्लिया आल्सो फोर ब्रेन में. इट हैज रोल इन मोटर कंट्रोल, रोल इन लर्निंग, रोल इन एक्शन सिलेक्शन, लाइक व्हेन वी सिलेक्ट व्हाट टू डू,
role in Parkinson disease and schizophrenia also. Then we are coming to the functions of midbrain. It lies above the medulla and pons near the end of brain system. So this is the structure of midbrain. ठीक है, ये जो डॉर्सल व्यू है, दिस एरिया ना, यहाँ पे एक छोटा सा वो एरिया था जो हमने बड़ी पिक्चर में देखा था, ये दिस पार्ट मिड ब्रेन के लिए. ठीक है. सो इट कंटेन्स एक्सटेंशन ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. इनके बारे में भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो दीज आर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. ये दिख रही है येलो नर्व्स, दीज आर RAS, reticular activating system. Okay. It contains primitive vision centers. विजन के सेंटर्स है इसमें. कौन से? सुपीरियर कॉलिकुलाई. अगेन ये आपके एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट. हियरिंग सेंटर कौन से? इंफीरियर कॉलिकुलाई. जो सुपीरियर कॉलिकुलाई हैं, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, these are superior colliculus and these are inferior colliculus. Inferior are one for hearing, superior are for vision. क्लियर हुआ? ये हमने पढ़ा था ना मिड ब्रेन के फंक्शन में कि वो ऑडिटरी और विजन में हेल्प करते हैं. That is why they do have centers for it. Yes, ma'am. It plays a role in regulation of visual reflexes. तो विजुअली जो रिफ्लेक्सेस हम परफॉर्म करते हैं उसमें इसका रोल रहता है. तो यहाँ पे याद करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट मिड ब्रेन में आपका यही वाला पार्ट है कि विजन सेंटर सुपीरियर कॉलिकुलाई, हियरिंग सेंटर इंफीरियर कॉलिकुलाई. क्लियर है ना ये? Yes, ma'am. देन कमिंग टू योर हिंड ब्रेन फंक्शनिंग. मेडुला ऑब्लांगाटा जो हमने देखा था ना, जो मैम क्वेश्चन इन द लास्ट स्लाइड. हाँ जी बोलिए मैम. ये जो सिर्फ ब्रेन का है ना, जिसमें छोटे, इसमें ये डॉर्सल व्यू का जो छोटा दिख रहा है, उसमें एक ही थैलेमस दिख रहा है. ठीक है. और ये डॉर्सल व्यू में 2 दिख रहे हैं मैम. सो मतलब 2 होते हैं क्या कि एक ही होता है? ये पर्पल वाला जो है. ओके. सो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? हमारे ब्रेन के कितने हेमिस्फीयर है? 2 हेमिस्फीयर. सो एवरीथिंग इज 2. फाइन. ठीक है. पता प्रॉब्लम ये आ रही है, शायद वही है, हमने कभी ना मोर ऑफ ना कभी ऐसे शायद ब्रेन सामने रख के पढ़ा नहीं है हमने. हाँ मैम. हाँ, बस पिक्चर्स में ही देखा है ना. हाँ राइट. उसमें भी शायद हम इतना इन डेप्थ कभी गए नहीं है, अगर सुपरफिशियली कुछ टर्म्स याद करी है, समझी है. दैट्स इट. राइट मैम. राइट. सो वी हैव 2 राइट एंड लेफ्ट एंड वी यूज बोथ ऑफ देम एंड दे बोथ हैव डिफरेंट फंक्शंस. दे बोथ लुक सिमिलर. They both have like set of 2 things, but they function differently. And it's important for us to balance both the left and right parts of brain. Fine, ma'am. Okay. So medulla oblongata has role in breathing. Pons and cerebellum. So pons is related to our heartbeat. It regulates heartbeat, blood pressure. It has role in respiration also, cardiac functions, and it is associated with our sleep cycle and consciousness. Then we have cerebellum. So cerebellum has role in motor control, movement, balance and posture, cognitive function, attention and language learning. Now one question again. ये आपके ना NCERT का क्वेश्चन है, स्कूल टाइम में पूछते थे हमसे, आई गेस सबसे पूछा होगा. तो देयर वाज अ क्वेश्चन इन योर NCERT बुक्स 10th क्लास में, आई गेस, जब ब्रेन के बारे में पढ़ाते हैं. तो अ चाइल्ड इज देयर एंड हिज पेंसिल फॉल्स डाउन एंड द चाइल्ड इज नाउ ट्राइंग टू पिक अप द पेंसिल फ्रॉम द फ्लोर.
which part is playing the role? While the child is trying to pick up the pencil from the floor, कौन सा ब्रेन का पार्ट रोल प्ले कर रहा है उस वक्त? मैम सेरिबेलम. सेरिबेलम. Cerebellum. Why? बिकॉज एक तो बैलेंस और पोस्चर है, तो झुकने के लिए बैलेंस चाहिए होगा. Right. और मूवमेंट भी सेरिबेलम से ही कंट्रोल होगा. राइट. सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे जो सेरिबेलम का जो खास फीचर है, उसका तो यूएसपी जो है वो है बैलेंस एंड पोस्चर. Yes, ma'am. ठीक है. जब बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करना होता है ना, वृक्षासन करना होता है, दैट इज सेरिबेलम. ठीक है. तो पेंसिल बड़े देखने में लग रहा है कितना छोटा सा तो मूवमेंट है, पेंसिल गिर गई उठा ली, बट पेंसिल गिरी है, उसको झुक के उठाने के लिए भी यू नीड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा उसके लिए भी. ठीक है. तो दैट इज सेरिबेलम. राइट. सिमिलरली आई गेस जब हम कुछ बात करते हैं समथिंग इनवॉलंटरी लाइक कुछ, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे ना कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स याद आ रहे हैं, तो वहां पे एक वॉमिटिंग वाला भी आता है, व्हेन यू फील प्यूकिश एंड ऑल, वहां पे पॉन्स का रोल आता है फिर. मैम हाँ. जब हम वृक्षासन में बैलेंस बनाते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो बैलेंस नहीं बन पाता, क्यों? हाँ. राइट. क्वेश्चन पूछ रहे हो आप इसमें कुछ? यस मैम. हाँ. क्या कि क्वेश्चन? आंखें बंद कर लेते हैं तो बैलेंस क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि आंखें खोल के रखने से हमें फोकस करने में आसानी होती है. मतलब जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे पास कोई एंकर पॉइंट नहीं है. दो ही तरीके का एंकर होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल. ठीक है. हमें पकड़ना होता है ना कुछ तो पकड़ना होता है. अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो हमारे हाथ भी हिलेंगे, हम कुछ पकड़ेंगे, कुछ टेबल, चेयर, दीवार, कुछ तो पकड़ेंगे सहारा लेने के लिए. ठीक है. बट अब हमने जब आंखें बंद करते हैं तो कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन खोलते हैं तो क्या करते हैं, हम आंखों से पकड़ते हैं. हमें कहा जाता है ना, दीवार पे जब तक हम एक टकटकी लगा के किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं करते, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, अगर हमारे आंखें खुली हैं लेकिन हम कहीं फोकस नहीं कर रहे हैं तो भी मुश्किल हो जाता है कोई भी पोस्चर करना. लेकिन हमने जब आंखों को एक पॉइंट पे लगा दिया है, फोकस कर दिया है, तो उससे क्या होगा, पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है. यहाँ पर ये भी तो इन्वॉल्व होगा ना कि जैसे हमने एक पॉइंट फोकस किया है, अब हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली ये मॉनिटर कर रहा है कि हम उस पॉइंट पर लेफ्ट जा, तो हम अपने आप अपनी बॉडी को ऑटोमेटिकली हल्का सा लेफ्ट कर लेंगे टू मेंटेन इट. राइट. इसमें एक और बात है, इसमें बॉडी कंट्रोल की भी बात आ गई है. मतलब व्हेन यू आर फोकस्ड, आपके माइंड का चिटचैट बंद हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शंस बंद हो जाएंगे. यस. हमारा ब्रेन फंक्शनिंग कर रहा है ना थ्रू आउट, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, सारे ब्रेन के सारे पार्ट्स एक्टिव हैं एक बारी में. बट द मोमेंट यू फोकस, सारा चिटचैट खत्म हो गया, यानी कि थॉट वॉट इतने आलतू फालतू चीजों में, मतलब जहां जहां ब्रेन काम कर रहा है, जहां रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सब रुक गया. यस मैम. नाउ अभी आपका जो बॉडीली कंट्रोल है वो बढ़ जाएगा. और बॉडी कंट्रोल कौन कर रहा है? आप कर रहे हो. आई मीन कैसे कर रहे हो? अभी तो पढ़ा ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? Central nervous system, right? Central nervous system. This body is your peripheral nervous system. Yes, Controlled by your central nervous system. Yes, ma'am. है ना? और हमने फोकस किया, उससे हमारा माइंड का चिटचैट बंद हो गया. माइंड का चिटचैट बंद, आपके ब्रेन का भी लोड कम हो जाएगा. ये सारा सब कुछ ब्रेन के पार्ट्स ही तो कर रहे हैं ना. थॉट चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है, एक्शन चल रहा है, ब्रेन में भी तो कितना कुछ चल रहा है ना. सारे पार्ट्स एक्टिव हो रखे हैं इस वक्त. यस मैम. राइट. तो जब आपको खुद पे कंट्रोल करना है तो हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस में जाते हैं, ताकि हम अपने ब्रेन को भी बेहतर तरीके से यूज कर पाए. तो ब्रेन अपना मैक्सिमम एनर्जी फिर आपको उस पोस्चर को मेंटेन करने में लगाएगा. आपका न्यूरॉन का जो फंक्शनिंग है वो ढंग से काम करेगा. यस मैम. ठीक है. यस मैम.
मैम एक क्वेश्चन था, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पॉन्स में या सेरेबेलम में कोई इंजरी होती है तो उसके जो फंक्शंस हैं उनमें हमें प्रॉब्लम आएगी, ये वाइस वर्सा हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल सेरेबेलम का बैलेंस एंड पोस्चर है, हमारा पोस्चर बहुत लंबे टाइम से हमारा मतलब हम नहीं सही पोस्चर में बैठ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े बैठ रहे हैं, हमेशा ऐसे गर्दन झुका के बैठते हैं, तो क्या उसका इफेक्ट सेरेबेलम पे हो सकता है? ओके, नाइस क्वेश्चन। इसमें आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जहां तक मुझे आइडिया है, as far as I have studied certain research papers, तो most of the time what has happened, जो तरीके से रिसर्च की जाती है ना आजकल, तो when a person is like going through any particular issue, disorder or something, ठीक है, तो they just try to have that brain pattern कि अच्छा ब्रेन के कौन से हिस्से में दिक्कत है, ठीक है, तो जनरली वो वाइस वर्सा चेकिंग करते ही करते हैं कौन से ब्रेन के हिस्से में इशू है, राइट? एंड दैट इज द रीजन, यही स्टडी हुई है इतनी सारी जिसकी वजह से इतने सारे फंक्शंस पता चल पाए हैं कि एमिगडाला इमोशन से एसोसिएटेड है, कि बिकॉज व्हेन यू आर बीइंग वेरी इमोशनल, ठीक है, तो एमिगडाला तो एक्टिवेट होगा ही होगा। व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग तो हिप्पोकैम्पस तो एक्टिवेट होगा ही होगा, राइट? अब जहां तक सेरिबेलम की बात अगर जैसे एग्जांपल आपने लिया है, तो जब हमारी बॉडी इफ वी आर नॉट गेटिंग इनटू राइट पोस्चर या कुछ ऐसा है, आई गेस इन केस ऑफ सेरिबेलम स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उसका काम है बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है? इट विल बी एक्टिवेटेड ओनली व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेंटेन अ पोस्चर rather than reverse. I guess so it will differ for different parts of brain depending on their actual functioning. हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शनिंग के वक्त एक्टिवेट होते हैं, ठीक है? तो जैसे हमने बात करी when we are having some emotion, amygdala will light up, ठीक है? When a dancer is like moving, having certain dance moves, at that particular time उसका cerebellum will activate, मतलब वो light up होएगा, क्योंकि वो यूज कर रहे हो। हमने पेंसिल वाला एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जब पेंसिल उठा रहे हैं तब cerebellum एक्टिव है बच्चे का। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? यस मैम। ठीक है, यस मैम। देन वी हैव रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, अगेन जो अभी हमने मिड ब्रेन में पढ़ा उसके क्या फंक्शंस हैं, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज अ बंडल ऑफ नर्व्स एट आवर ब्रेनस्टेम रीजन that filters out any unnecessary information so that the important stuff gets through। यानी कि ये क्या करते हैं, हमें अटेंशन इंफॉर्मेशन पे फोकस करने में हेल्प करता है। आउट ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन हम आलतू फालतू इंफॉर्मेशन हटाते हैं और सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। नाउ देयर इज वन फिनोमिना हम परसेप्शन में पढ़ते हैं, कॉकटेल फिनोमिना। मतलब सिलेक्टिव अटेंशन जो होता है वो ये इसकी वजह से। हाँ राइट, सिलेक्टिव अटेंशन में ये इसका रोल रहता है। तो हमने एक पढ़ा है ना, कॉकटेल फिनोमेना पढ़ा है आपने? यस मैम। व्हाट हैपेंस इन दैट? उसमें होता है कि एक पार्टी चल रही है, उसमें पूरा मतलब पूरी नॉइस हो रही है, उसमें भी अगर कोई आपको पुकारा तो आपको वो अपना नाम सुनाई देता है, मींस कि हम उस पे फोकस कर रहे हैं। राइट, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमने फिल्टर आउट कर दी वहां पे। यस मैम, यस मैम। तो उसमें किसका रोल हुआ? आरएएस का। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जब हम कुछ नया वर्ड सीखते हैं, ऐसा कभी फील करा है कि फिर आपको वही वर्ड कई दिनों तक मतलब वही हर जगह नजर आने लगता है? यस मैम। यस मैम। होता है ना? ऐसा लगता है यार अभी तो हमने सीखा है, अब यही अपीयर हुए जा रहा है, बार बार जहां जा रहे हैं वही शब्द दिख रहा है। यस मैम, और वो हम हर चीज से ना एसोसिएट करने लगते हैं, मतलब अनकॉन्शियसली या कुछ भी वो एसोसिएट होता रहता है, कुछ भी ऐसा हुआ। हाँ, तो उसका रीजन भी यही है।
ऐसा नहीं है कि वो अपीयर अभी होना शुरू हो गया है आपको क्योंकि अभी अभी आपने सीखा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अभी सीखा है तो इसलिए आप उस पर ध्यान दे पा रहे हो, वो पहले भी वही मौजूद था जहां अब है। यस मैम। ठीक है, सो दैट मेन फंक्शन ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। लोकेशन, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हिंड ब्रेन टू द मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन से मिड ब्रेन की तरफ पूरे में फैला हुआ है। मिड ब्रेन में भी हमने देखा था ना एक्सटेंशन से आ रहे हैं इसके। इट रेगुलेट्स अराउजल, अलर्टनेस एंड अटेंशन। ठीक है, तो ये इसके मेन फंक्शंस है। Then we are coming to the structure of cerebral cortex. Cerebral cortex की हम बात कर रहे हैं, which is the outer surface of our brain, and you know it is divided into two cerebral hemisphere, right and left. Now the surface of cortex, जो cortex का surface है, it is divided into 4 lobes also. Frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, and temporal lobe. And all the lobes and their functions are very important for you. Again, from your exams perspective. So the very front part, नाम से ही है frontal, so this is the front part of brain. This is frontal lobe. It includes functioning like thinking, memory, behavior and movement. ठीक है, the back part, पीछे की तरफ, this is parietal. It is associated with language and touch. Language and touch. Then you have this पीछे एकदम occipital, which is associated with your sight. Occipital का मतलब ही है, ठीक है, vision से related, sight. Then at the back, very back, cerebellum, तो you all know that is not a lobe actually. Then hair, this part, hair, you have temporal lobe. Now this is associated with hearing, learning, and your feelings. The temporal lobe, ठीक है, hearing, learning and feelings. Now the frontal lobe, the area that produces movement of body parts, this is the frontal lobe, right? Associated with forebrain mainly. तो वहां पे it is found in primary motor cortex. Cortex का कौन सा region है वो? Motor cortex, primary motor cortex. Damage to this area does not produce paralysis. पर अगर ये damage होता है तो उससे paralysis नहीं होगा, लेकिन will lose some fine movement, fine muscle movement, जैसे finger movement करना है ना, कुछ बहुत fine muscle movements है वो हम loss हो सकते हैं. Prefrontal cortex is responsible for memory, intelligence, concentration, temperament, sorry, it is temperature होगा, and personality. That is the role of prefrontal cortex. So frontal के भी आगे एक prefrontal रहता है, यानी कि the very ऐसे इस तरफ यहाँ पे, ठीक है, उसको prefrontal बोलते हैं. तो it has relation to memory, intelligence, concentration. It helps us to make plans, set goals and priorities, and even language. Frontal lobe also help in controlling emotions by its connection with limbic system. तो frontal lobe का connection limbic system के साथ भी है, ठीक है. And this way, क्योंकि limbic system के साथ भी ये connected है, इसलिए आपके emotions को control करने में भी मदद करता है. मैम एक एज, मतलब जब छोटे बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं, स्किल सीखते हैं, तो एक पर्टिकुलर एज होती है जिसमें वो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करते हैं. तो वो भी इसी फ्रंटल लोब के इनहिबिशन, मतलब उसके वर्क से, फंक्शन से रिलेटेड हुई ना, तब उनका फ्रंटल लोब बेसिकली एक्टिवेट रहता है. ओके. ऑसिपिटल लोब, दिस बैक में, ठीक है, पीछे की तरफ. The lobe contain region that contribute to our visual field. This region is primary visual cortex भी इसको हम बोलते हैं. Visual association cortex is the part which helps in identifying and making sense of visual information from eyes. So एक हुआ primary visual cortex, ये पीछे की तरफ ही, ठीक है, and एक उसके साथ है association cortex,
ठीक है, ये विद इन ऑसिपिटल लोब हम बात कर रहे हैं। एक प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है और एक उसके साथ एसोसिएशन कॉर्टेक्स है। जो एसोसिएशन है वो आपके जो भी आपने देखा है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको समझने में आपकी मदद करता है, उस विजुअल इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, कॉम्प्रिहेंड करने में। देन यू हैव योर टेम्पोरल लोब, इट हैज फंक्शन विद, इसको हम प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट हैज फंक्शन विद साउंड्स, इट हेल्प अस टू हियर साउंड्स एंड गिव साउंड्स देयर मीनिंग। ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो हम सुन रहे हैं और उसको समझना कि हम क्या सुन रहे हैं, ये सब टेम्पोरल लोब में हो रहा है। ठीक है, व्हेन इंजरीज अकर इन लेफ्ट हेमिस्फीयर, people may lose ability to understand spoken words. If you remember, हमने लैंग्वेज में भी पढ़ा था, हमने ब्रोकास एरिया की बात करी थी और हमने वर्निक्स एरिया की बात करी थी, राइट? यस मैम। तो जो वर्निक एरिया है, वो जो वर्निक एरिया है उसका लोकेशन क्या था? लेफ्ट टेम्पोरल लोब। लेफ्ट, यस मैम। ठीक है, और वहां पे उसका फंक्शन क्या था? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स, जो बोले गए शब्द है किसी के, उसको समझने की क्षमता। मतलब तो वर्निक एफेजिया में क्या होता है, आप उसको समझ नहीं पाते हो किसी की बात को। यस मैम, यही था ना एफेजिया में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एंड दिस टेम्पोरल लोब आल्सो हैव ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, जो स्मेल सेंस करते हैं। मैम इसका भी एसोसिएशन एरिया होगा? हाँ, सबका एसोसिएशन ऑलमोस्ट सबका रहता है, बट वही है, वही अंडरस्टैंडिंग में एसोसिएशन का काम रहता है। ठीक है। पेराइटल लोब, these are the top and the back of brain, consist of somatosensory cortex। कौन सा कॉर्टेक्स आ गया आप? सोमैटोसेंसरी, यानी कि सोमा इज योर बॉडी। ठीक है, और दैट इज सेंसरी। तो हमने पढ़ा था ये किसमें काम कर रहा है? फील करने में। इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम विजन, हियरिंग, मोटर, सेंसरी एंड मोटर। तो मोटर फंक्शंस भी हैं। फिर हमने पढ़ा टच का काम भी पेराइटली दे रहा है, जो हम सेंस करते हैं ना टच करके। तो हमारी जो स्किन से इंफॉर्मेशन जा रही है वो भी पेराइटल के थ्रू जा रही है। गस्टेटरी, ठीक है, जो टेस्ट वाला सिस्टम है हमारा, वो भी सारा इसी के थ्रू हो रहा है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। सो दीज आर, देखो, प्राइमरी मोटर कॉन्टेक्ट। मैम मतलब सारे जितने भी हमारे सेंसरी सिग्नल्स हैं उनको पैराइटल लोब मतलब कैच कर रहा है एक तरह से। हाँ, पैराइटल सबसे सिग्नल रिसीव करता है। हाँ, ओके मैम। As you can see, this is the whole picture. ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमने शुरू में पढ़ा था, प्लानिंग, इमोशन, जजमेंट। ठीक है, उसमें भी एक और डिवीजन यहाँ पिक्चर में है, डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल एसोसिएशन एरिया, इमेजिनेशन के लिए जो काम आ रहा है एसोसिएशन एरिया। देन मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स, जो कि कोऑर्डिनेशन, फिजिकल एक्शन के लिए काम आ रहा है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स का नाम फंक्शन के हिसाब से रखा गया है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो वॉलंटरी मूवमेंट को इनिशिएट करता है। ठीक है, प्राइमरी मोटर इनिशिएट करता है, मोटर एसोसिएशन कोऑर्डिनेट करता है। देन यू हैव प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, यो टेक्टाइल इंफॉर्मेशन, ये पेराइटल में है। ठीक है, ये वाला टेक्टाइल, यू अंडरस्टैंड ना, वही टच वाला। यस मैम। सेंसरी एसोसिएशन एरिया, ये भी हम पेराइटल का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा ना, मल्टी सेंसोरियल इंफॉर्मेशन ले रहा है। देन यू हैव ऑसिपिटल पीछे, जिसमें विजुअल एसोसिएशन एरिया है, जिसमें विजुअल मेमोरी भी है, और विजुअल कॉर्टेक्स है विजन के लिए। देन टेम्पोरल आता है। टेम्पोरल में छोटा सा यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज वर्निक एरिया, जो कि ऑब्जेक्ट को समझने में और उसको नाम देने में मदद कर रहा है। ठीक है, देन यू हैव ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। टेम्पोरल अभी आप पूछ रहे थे ना एसोसिएशन एरिया, तो ऑडिटरी का भी एसोसिएशन एरिया है। ठीक है, जहां पे साउंड की मेमोरी भी क्रिएट होगी। देन यू हैव हेयर, छोटा सा ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑल्सो, जो हियरिंग में मदद करेगा। और इन टोटल ये तीनों चीजें सब मिला के पूरा टेम्पोरल लोब है। ठीक है, ब्रोकास एरिया, ब्रोकास एरिया इज समवेयर हेयर, आपके जो फ्रंटल हमने पढ़ा था कॉर्टेक्स, उसी की बात हो रही है यहाँ पे।
जो फ्रंटल लोब पड़ा था वहीं पे आपका यहाँ पे ब्रोकाज एरिया भी है इस रीजन में, ठीक है। एंड उसका अगेन ब्रोकाज एरिया का स्पीच प्रोडक्शन से कनेक्शन था, यस ठीक है, मैम, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स। अगेन व्हेन योर मोटर कॉर्टेक्स यानी कि जो फ्रंटल लोब है अगर उसमें डैमेज होता है तो यू लूज कंट्रोल ओवर फाइन बॉडी मूवमेंट्स लाइक योर फिंगर मूवमेंट्स। लेकिन अगर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स डैमेज होता है यानी कि पेराइटल लोब, ठीक है, तो अगर लेफ्ट हेमिस्फेयर का पेराइटल डैमेज हुआ है, लेफ्ट हेमिस्फेयर का, तो वी लूज राइटिंग एबिलिटी इफ वी आर राइट हैंडेड। मतलब जनरली ज्यादातर लोग सीधे हाथ से लिखते हैं, ठीक है, पर अगर लेफ्ट हेमिस्फेयर का पेराइटल डैमेज हो गया है तो आप राइटिंग एबिलिटी खो दोगे, बॉडी पार्ट्स को लोकेट नहीं कर पाओगे। इसका क्या मतलब है लोकेट नहीं कर पाओगे? क्या आपको पता नहीं है आपकी आंख कौन सी है, नाक कौन सी है, कहाँ कहाँ है? पता तो सब कुछ है, लोकेट नहीं कर पाओगे। लोकेटिंग कैसे करते हैं हम? ऐसे करते हैं ना, फिंगर से पॉइंट आउट करके। यस मैम, You ask me where are your eyes, so I will tell you like this. But if my parietal lobe of left brain is damaged, I won't be able to use this ना, I won't be able to connect the information. हाथ मूव कर सकती हूँ, पैरालिसिस नहीं हुआ है मुझे, लेकिन इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हो पा रही है, लेफ्ट का डैमेज हो गया है। जब लेफ्ट का डैमेज होता है तो राइट साइड काम नहीं करती है, और जब राइट का ब्रेन डैमेज होता है तो बॉडी की लेफ्ट साइड इफेक्ट होती है हमारी। यस मैम, ठीक है, राइट हेमिस्फीयर जब डैमेज होता है तो लेफ्ट साइड वाले अनअवेयर ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, तो मैं लेफ्ट साइड को अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड को लेके अनअवेयर हो जाऊंगी जब मेरा राइट में पैराइटल लोब डैमेज हुआ है, ठीक है, वहां इशू आएगा। और अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूं और मेरा राइट हेमिस्फीयर डैमेज हुआ है तो अगेन आई विल लूज माय राइटिंग एबिलिटी। देन वी हैव विजुअल कॉर्टेक्स। अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर में डैमेज होता है तो हम राइट का विजन खोते हैं, और अगर राइट हेमिस्फीयर में डैमेज होता है तो हम लेफ्ट का विजन खो देते हैं। देन वी हैव टेम्पोरल लोब डैमेज। अगर अगेन लेफ्ट में डैमेज होता है टेम्पोरल में, तो देन वी लूज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स। समझ नहीं पाते हम क्योंकि लेफ्ट इज एसोसिएटेड टू वर्निक एरिया। यस मैम, और अगर राइट में डैमेज होता है तो वहां पर दूसरा इशू है, वी कांट रिकॉग्नाइज मेलोडीज, टोन्स और रिदम। तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी धुन है, क्या टोन है, रिदम क्या है, उस चीजों में हमें इशू आता है। ठीक है, दिस इज अगेन द एफेजिया पार्ट। इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्निक्स एरिया एंड एरिया इन लेफ्ट टेम्पोरल लोब, इसका लोकेशन पता होना चाहिए आपको। दैट थ्रू इट्स कनेक्शन विद अदर ब्रेन एरियाज प्लेज अ रोल इन स्पीच कॉम्प्रिहेंशन। स्पीच को समझने में काम करता है। इसमें अगर डैमेज होता है तो वर्निक्स एफेजिया होता है और समझ नहीं पाते हम स्पीच को। ब्रोकाज एरिया ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। इट हैज रोल इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, एंड इफ दिस इज डैमेज द person can't speak smoothly and fluently। ठीक है, अगर ये डैमेज होता है, and it leads to Broca's aphasia। Is it clear to everyone till here? yes ma'am, Yes, ma'am. Then we have another thing that is spatial neglect। Spatial neglect वही है जैसा अभी हम पढ़ रहे थे कि अगर राइट ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो लेफ्ट को लेके हम नेग्लेक्ट हो जाते हैं, और अगर लेफ्ट ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो हम राइट बॉडी को लेके नेग्लेक्ट हो जाते हैं, उसको हम स्पेशियल नेग्लेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो डैमेज टू एसोसिएशन एरियाज ऑफ राइट हेमिस्फीयर कैन प्रोड्यूस ऑड कंडीशन कॉल्ड स्पेशियल नेग्लेक्ट। पर्सन फेल्स टू रिकॉग्नाइज द लेफ्ट साइड ऑफ द विजुअल फील्ड। उसको यहाँ मतलब अगर राइट डैमेज है तो लेफ्ट विजुअल फील्ड में जो भी कुछ है ना बॉडी की, सब दिक्कत हो जाती है वहां पे। Spatial neglect can affect the left hemisphere. This condition, अच्छा ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। Spatial neglect can affect the left hemisphere। ये पॉसिबल दोनों में है, राइट में होगा तो लेफ्ट साइड इफेक्ट होगा, लेफ्ट में होगा तो राइट इफेक्ट होगा, बट ज्यादातर ये स्पेशल नेग्लेक्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर में देखा जाता है। ठीक है,
This condition occurs less frequently and in much milder form than right hemisphere in case of left hemisphere. तो लेफ्ट में ज्यादा देखा जाता है, ठीक है, और राइट में कभी कभी होता है या फिर बहुत माइल्ड तरीके से होता है अगर होता है तो. These are the functions left brain associated with recognizing and remembering names. As you know, I guess इतना तो पता है, left brain is the logical one, right brain is the कहते हैं क्रिएटिव है, इमोशनल है, इंट्यूटिव है. ये सारे एडजेक्टिव्स हम राइट के साथ लगाते हैं, ठीक है. यस सर. Yes, So ma'am. it recognize and remember names in emotional inhibitions, यानी कि जो इमोशंस को हम इनहिबिट कर रहे हैं, यहाँ पे एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लॉजिक लगा रहे हैं, दिमाग लगा के उनसे बच रहे हैं. वर्ड्स फॉर मीनिंग, लॉजिकल थॉट, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन सीक्वेंशियली, serious systematic problem solving, logical appeals, critical analytical reading, listening, problem solving through logic, verbal instruction, remembering through languages, reading for details and facts, realistic stories. Right brain, emotional responses, interpreting body languages, producing humorous thoughts. यहाँ पे creativity आ गई सारी. Processing information subjectively, okay? Playful problem solving, emotional appeals, creative synthesizing, associating applications in reading, problem solving through intuition. Intuition right brain का part है. Demonstrational instruction, remembering through images, images के through याद रखना, that is part of right brain. Okay. Again, few more. जब हम बात कर रहे थे अभी कि अगर डैमेज आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में है तो राइट हैंड से लिखने में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है. लेफ्ट राइट को गवर्न करेगा, राइट लेफ्ट बॉडी पार्ट को गवर्न करेगा. तो यू कैन सी दिस इज योर लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर इज गवर्निंग योर राइट बॉडी पार्ट, ठीक है. तो ये राइट विजुअल फील्ड है यहाँ पे लेफ्ट हेमिस्फीयर में. ओके. ऑडिटरी कॉर्टेक्स, राइट ईयर का ऑडिटरी कॉर्टेक्स है. राइटिंग, राइट हैंडेड राइटिंग है यहाँ पे. स्पीच सेंटर, ठीक है. सिमिलरली अगर राइट हैंड की राइट हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो टच, एनालिसिस बाय टच हमारा इफेक्ट हो रहा है विद लेफ्ट हैंड, ठीक है. विजुअलाइजेशन, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, इसके जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं. तो ये जो स्पेशियल विजुअलाइजेशन, हम जो इमेजिन करते हैं और स्पेस को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, ये अपने हाथों से चीजों को महसूस करते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स वगैरह को, दैट इज विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ लेफ्ट विजुअल फील्ड. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन ये हमारा है, ठीक है. तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डिवाइडेड, द फंक्शंस आर बीइंग डिवाइडेड. इसलिए हमने कहा कि जो स्पेशल नेग्लेक्ट है, स्पेशल नेग्लेक्ट है, ये ज्यादातर लेकिन लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है. मैम इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था ना, जिसमें कॉर्पस कैलोसम को कट करके देखा गया था कि अभी विल डिस्कस दैट, हम करेंगे उसको लास्ट में, वो एक्सपेरिमेंट ही है अभी. Then we have again ये सिमिलर चीजें हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके सारे फंक्शंस इंक्लूड हो जाएं. तो ग्रुप लेफ्ट हेमिस्फीयर, ग्रुप कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सेंसेशन, विजन, मूवमेंट, लीनियर थिंकिंग, वर्बल मेमोरी, वर्निक्स लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग एरिया, ब्रॉडकास्ट स्पीच एरिया, गोल directed linear planning. Right hemisphere, environmental awareness, survival, sensation, vision, movement of left side. Non-linear thinking, again related to creative thinking. Visuospatial memory, ठीक है. Mental manipulation of relationship, it's related to imagination. Production of originality, again creativity. Complex emotional decisions, error detection, humor. Emotional content of speech and music. So they all are related to right hemisphere. So your routine activities are governed by left hemisphere. Your novel activities are governed by right hemisphere. And that is why if you have witnessed while doing yogic postures, आपको हर posture एक बार right से कराते हैं, एक बार left से कराते हैं. Yes ma'am. Right?
ताकि आपके दोनों ब्रेन्स बैलेंस रहे, विच एवर पोज यू आर इनटू, है ना। सब कुछ पहले एक बार आप राइट से करते हो, फिर आप लेफ्ट से करते हो, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज द बोथ द ब्रेन शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है। Now here comes that experiment which you were talking about, split brain research की गई थी एक बार, और what was done exactly, the corpus callosum was cut। ठीक है। तो corpus callosum actually it was like surgically removed or cut to see कि how it affects the functioning of an individual। okay, so जब corpus callosum cut हो गया, that means left brain is not associated with your right brain। यही मतलब है इसका, लेफ्ट की इंफॉर्मेशन राइट में नहीं पहुंच रही और राइट की इंफॉर्मेशन लेफ्ट में नहीं पहुंच रही है। ठीक है। नाउ यू कैन सी, अब आपको पिक्चर पे ज्यादा ध्यान देना है। अब आपको पता है कि सिचुएशन क्या है, कॉर्पस कैलोसम इज कट। ठीक है। नाउ ऑन द स्क्रीन देयर इज अ वर्ड हियर व्हिच इज दिस वर्ड। This is the center of screen and this। ठीक है। So this is a stimulus which was given to the person। So this particular stimulus, as you can see here, the image of this is here and image of this is here। Why? अभी तो पहला ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख रहे हो ना। ये आई कांट हियर यू, आपकी ना वॉइस ब्रेक होके आ रही है। हेलो। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ अभी आ रही है मैम अभी। हाँ मैम, बिकॉज लेफ्ट का फंक्शन राइट से होता है एंड लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन राइट वाले साइड से होगा। नहीं, लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन राइट साइड से नहीं होगा। अगर हम कह रहे हैं कि राइट विजुअल, हाँ बोलने में आप थोड़ी गड़बड़ कर गए। हाँ विजन, हाँ हाँ राइट विजन की बात कर रहे हैं तो राइट विजन गवर्न्ड बाय लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, हाँ विजन इज गवर्न्ड बाय राइट ब्रेन। यस मैम, यस मैम। तो दैट इज व्हाई जो TEN वर्ड 10 लिखा था वो लेफ्ट साइड की स्क्रीन में था, इसलिए उसका इमेज कहाँ बन रहा है, लेफ्ट ब्रेन, सॉरी राइट ब्रेन में। लेफ्ट में लिखा था, राइट ब्रेन में ANT राइट में लिखा था, इसलिए उसका इमेज लेफ्ट ब्रेन में बन रहा है। ठीक है। दिस वाज द केस। पर्सन इज आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर। अब उससे पूछा जाता है व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिख रहा है। तो क्या जवाब दिया उसने, when the person is asked आपको क्या दिख रहा है, तो what was the answer? अभी हमारे ब्रेन कनेक्टेड है तो वी कैन सी द वर्ड इज टेनेंट, बट उस पर्सन का कॉर्पस कैलोसम वाज कट, सो ही आंसर्ड व्हाट, एंड ओनली एंड। नाउ टेल मी व्हाई। Why he answered this only? मैम ये राइट साइड है तो राइट साइड से हम देख रहे हैं तो विजुअल हमारा इमेज बन रही है लेफ्ट में। हाँ तो लेकिन 10 की भी तो बन रही थी ना दूसरे ब्रेन के दूसरे राइट पार्ट में। पूछने पे उन्होंने सिर्फ यही जवाब क्यों दिया? मतलब वो 10 भी तो दे सकते थे। मैम उनकी एक विजन बंद होगी इसीलिए। नहीं, बंद तो कुछ भी नहीं है ना, आप देख रहे हो अभी अभी फिलहाल बंद कुछ भी नहीं है। ओके। विजन बंद होती तो ये बनता ही नहीं ना, एक पिक्चर ये बनी एक पिक्चर ये बनी, दोनों विजन एक्टिव है। पर जब पूछा, जब बोलने को बोला क्या दिख रहा है, तो उन्होंने सिर्फ इसका नाम लिया। क्योंकि शायद स्पीच का वर्क जो है वो लेफ्ट साइड करती है ना। यस, वेरी गुड। स्पीच प्रोडक्शन है जो ब्रोकास एरिया है,
वो कौन सा ब्रेन पार्ट? लेफ्ट। लेफ्ट गवर्न कर रहा है, ठीक है। उनको पूछा गया है, उनको बोलने को बोला है, तो वो बोलेंगे, फिर वही बोलने के लिए लेफ्ट काम कर रहा है ना, और लेफ्ट में ANT बना था। यस मैम। यस मैम। कनेक्शन समझ आया? यस मैम। है ना इंटरेस्टिंग? यस मैम। ठीक है, बोलने के लिए ब्रोकास्ट था, दैट इज एसोसिएटेड विद लेफ्ट, एंड लेफ्ट में ANT की पिक्चर बनी थी, इसलिए एंट बोला। ठीक है मैम, अभी जैसे मान लीजिए अभी आपने हमें बोला कि आप वो सामने स्क्रीन है उसमें 10 एंट दोनों हैं, 10 एंट, तो आप उसमें देख के पढ़ के बताओ, तो हम तो पूरा ही बताएंगे 10 एंट, क्योंकि हमारा तो कॉर्पस कैलोजम जुड़ा हुआ है ना, हमें तो हमारी तो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है ना दोनों ब्रेन्स के बीच। इसमें वो एक्सपेरिमेंट में कट कर दिए थे। यानी कि ये जो 10 की इंफॉर्मेशन है ना, हमारे ब्रेन में भी यही पिक्चर है। द रियलिटी इज हमारे ब्रेन में भी यही पिक्चर है जो इनके ब्रेन में है, बट वी हैव आवर कॉर्पस कैलोजम इंटैक्ट। तो जब इंटैक्ट है तो वी कैन लाइक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना भाई हम तो। उनका इंटैक्ट नहीं है। राइट ब्रेन इज नॉट शेयरिंग एनी इंफॉर्मेशन विद लेफ्ट ब्रेन। यस मैडम। ठीक है, देन हाँ पूछो। मैम, ये रिसर्च एथिकली करेक्ट है? हाँ, एथिकली तो करेक्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है। any such research is not ethically correct. ओके। इनफैक्ट ये बायोलॉजी है, साइंस में तो बहुत जितनी भी स्टडीज हुई हैं शायद वो इनिशियली तो सब अनएथिकली ही करी गई है साइंस में। इवन इन साइकोलॉजी ऑल्सो हमने जितना पढ़ा है स्टार्टिंग से, वो भी एक्सपेरिमेंट्स काफी अनएथिकली शुरू हुए थे सारे। यस, बट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी किसी की ऑलरेडी ब्रेन में इंजरी हो, उसके साथ आप नॉर्मल ब्रेन को कंपेयर करो तो ठीक है, बट यहाँ पर अगर कट किया जा रहा है तो ओके। Then here the person can point to the word, okay, this is the answer. तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सारे वर्ड्स यहाँ स्क्रीन के इधर लेफ्ट में रखे हैं, ठीक है। अब ये जो सारे लेफ्ट में वर्ड्स हैं, इसका पिक्चर कहाँ बन रहा है? राइट ब्रेन में, राइट, ठीक है। Now the person has been asked to point out the word tenant. In 4 words में से the person has been asked to point out the word tenant. Tenant को point out करना है आपने, ठीक है। अब पहले मुझे ये बताओ वो कौन सा हैंड यूज करेगा टू पॉइंट आउट? लेफ्ट। लेफ्ट हैंड यूज करेगा। वाई? अच्छा, क्योंकि राइट ब्रेन में टू लेफ्ट पार्ट, राइट, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन राइट ब्रेन में है तो वो लेफ्ट हैंड यूज करेगा पॉइंट आउट करने के लिए। यस मैम। ठीक है, और पॉइंट भी कहाँ कर रहा है वो? उसके बाद वो टेनेंट के पास जाके यहाँ पे TEN के पास पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि पहले भी इंफॉर्मेशन कहाँ पे थी ज्यादा? 10 की। टू द राइट साइड। ये पूरा वर्ड है ना इतना बड़ा, मैं यहाँ पे भी तो मेरे को जब पूरे वर्ड की तरफ पॉइंट आउट करने को बोला है तो मैं यहाँ पे भी तो कर सकती थी ना ANT के पास। लेकिन वो सीधा जाके यहीं पे पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस भी तो है ना। 10 का बना था पहले, राइट साइड पे ना मैम, ब्रेन के राइट वाला साइड, राइट हेमिस्फीयर। हाँ ठीक है, अभी आया ये समझ में ना एक्सपेरिमेंट? यस मैम। और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हाउ द ब्रेन इज फंक्शनिंग ये भी समझ आया होगा, हाउ द 2 पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर फंक्शनिंग। Okay, so this was split brain experiment, and this is it for today's class without going into too much details.
Okay, we'll go into more details in tomorrow's class. I guess we'll start with the sensory systems, how our actually eyes work, vision system, then the auditory system. तो जितना feasibly हो पाएगा तो we'll go in small chunks so that information overload ना हो आपके साथ. ठीक है? Is it fine for today's class? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubts to anyone? No, ma'am. No, ma'am. मैम मैम लेकिन अब वो रिवीजन करेंगे ना तभी समझेगा कितना समझा Yes, है ma'am. और कितना आज लग रहा पूछना है है आपसे. इस वाली यूनिट में कि हम अप्लाइड करके पढ़ रहे हैं, अदरवाइज वही सुपरफिशियल पढ़ा है आज तक. तो आज क्लियर ही हुई है कि हाँ ऐसे ऐसे वर्क करता है, जैसे आपने पूरा पिक्चर इमेज के थ्रू दिखाया. तो बेसिकली यही है, और जितना आप इसको समझ के पढ़ोगे ना उतना इट विल बी इजियर फॉर यू. येस्टरडे ऑल्सो जब हम न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ रहे थे तो हमने उसको रिलेट करके पढ़ा लाइफ के एग्जांपल्स के साथ, है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्चुअल डिजीजेस के साथ हम वी एक्चुअली लाइक ट्राई टू मेक अ कनेक्ट रेदर देन जस्ट ट्राइंग टू जस्ट मग अप. ये भी हो सकता है ना, yes, हम एक ma'am. चार्ट बना लेते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये डिजीज है, और रट्टा मार लेते हैं. ठीक है, लेकिन वो याद नहीं रहेगा. अगर समझ के करोगे तो वो ध्यान में भी रहेगा एंड इट विल स्टे फॉर लॉन्ग विद यू. इट विल मेक सेंस. आप समझ Yes, ma'am. पाओगे, आप एंजॉय कर पाओगे इस चीज को. Yes, madam. ठीक है. सो Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू एवरीवन. Thank you, ma'am. Okay, guys, take care. See you tomorrow. You're welcome. We'll see you tomorrow. ठीक है? Tomorrow तो at the Thank you, same time at 6 we'll meet. ठीक है? Yes, ma'am. 6 मैम की 4? कल थोड़ी संडे है. अच्छा ओके ओके फाइन ठीक है मैम. कल संडे नहीं है ना, कल तो we all have work. यस मैम. Okay, guys. Thank you. Bye. Take care. बाय बाय. Bye, ma'am. Take care, ma'am.